Okay, good afternoon. I need somebody to tell me if you are able to hear me. Yes, sir, we can hear you. Okay, I also need somebody to tell me whether you are able to see the shared screen. Yes, sir. Yes, we can. Great, excellent, excellent. So before we talk about last week, we have a slot decided for the quizzes. Quiz slot is going to be Monday, 7 p.m. Okay. So we'll have quiz every Monday, maybe almost every Monday, Okay. So the first quiz is going to be on February 1st, 2021, okay, which is Monday at 7 p.m. So this would be approximately 30 minutes quiz and a few questions in there, very simple, easy questions. We also have homework 1 is out, due on Saturday, coming Saturday. Okay. So last week, what we did is very simple exercise on counting, and we motivated the counting by saying that in order to answer several probability questions, we have to do counting. And in order to do counting of large number of things, we can't do it manually. So in order to do it by using some formulas, we derived a few very simple kind of formulas. One was basic counting principle. Basic counting principle. One thing can happen in 4 ways, another thing can happen in 3 ways. Both of those things simultaneously can happen in 4 times 3 ways. Okay, so basic counting principle. And then we also talked about permutations. Permutations of number 1, unique, and number 2, non-unique objects. Non-unique objects. Okay. And the permutations is simply by taking the factorial if it is unique, and it's taking the factorial divided by the number of non-unique objects. So very, very simple formulas for permutation as well. If you don't recall those, please go ahead and revise the last 2 lectures. Okay. Then we also talked about combinations. So while permutation was the arrangement of the entire set of objects that is available to you, combinations is selection of a smaller subset of objects. Selection of a subset of objects from a larger set. So the way that we did is that, this would be n choose r if you have ways of picking r objects from n objects. Okay. R is small, n is large. R is small, n is large. 100 में से आपने 6 चीजें उठानी है. So 100 choose 6. 100 choose 6. Okay. Now we had a few examples of these. Today we are going to talk about binomial theorem, multinomial law, and then distribution of balls and arms. Okay. That will conclude chapter 1. And by the way, so far, everything that we have covered in the class is sufficient to solve all the problems in the homework. Okay, so you should be able to solve all the problems in the homework. The lecture today will just add or reinforce some of those things. Okay. So an identity which is
sometimes used in combinatorics is n choose r. What is this n choose r? Somebody needs to tell me. N choose r is the number of ways you can pick r objects out of n objects. So you have n objects. Us n objects में से you have to pick a smaller number of objects, which is r objects. So you have n objects. Out of those, you are picking r objects. So that is n choose r. The identity goes like this. The identity is this, that this is equal to n minus 1 choose r minus 1 plus n minus 1 choose r. Okay. Now this might look very difficult to understand how you can prove this. Of course, you can prove this analytically simply by opening the left hand side and right hand side and simplifying. Okay, but there is another way of combinatorial way of proving this. Combinatorial way of proving this is that so n minus 1 choose r minus 1. This guy here, the first term here, is the selection that contains a particular object. What do we mean by that? इसका मतलब ये है कि वो आपके पास n objects थी. You had n objects. Let's say we mark them as one as special. One is a special guy. Okay. So I pick that one special one, and then out of the remaining n minus 1, I pick r minus 1. Okay, so the special one is picked and the r minus 1 are picked from the remaining n minus 1. So this is the total number of combinations. The first term is the total number of combinations which select r items from n items, which include that one special item. उस जो स्पेशल आइटम जिसको हमने लाजमी इंक्लूड करना है, उसको मैंने अलग कर लिया है. उसको अलग करके पहले से ही इंक्लूड कर लिया. तो बाकी जो n-1 बच गई हैं उसमें से r-1 उठा लें, तो टोटल आपके पास n में से r हो गई. ठीक है, बट मेक श्योर दैट दिस अंडरस्टैंड दैट दिस इज द नंबर ऑफ सेलेक्शंस of r objects from n objects, and including that special one. Okay. The one on the right hand side is this guy here, is also a selection of r objects. So number of ways you can select r objects out of n minus 1 objects. Okay, so that means कि अब हमने क्या किया कि now there is this special object जिसको हमने special object कहा था, उसको उठाया और फेंक दिया, उसको हमने include नहीं किया. बाकी जो n-1 बच गई हैं उसमें से मैंने r पिक कर ली है. So I had to pick r anyways. ठीक है, I had to pick r anyways. So on the left hand side what I have is n choose r. On the right hand side I have divided this into two segments. One is that combinations or those selections which contain the special object, and one is those combinations or those selections of r objects that do not contain the special object, the special or particular object. Special object कह लें, particular object कह लें. ठीक है. So so this is very simple way of proving it. Of course, you can open the factorials and solve it and prove it as well. Okay. Now, how many people remember the binomial theorem from your high school days? Sir, yes. I have a question. Yes. The concept that you just explained, the identity, can you explain it using like a diagram? Like a few of us don't understand it that well. So I'm not sure what kind of diagram do you need here. You have n objects. Out of those, you are selecting r objects on the left side. Out of n objects, you should just only speak for yourself. Don't speak for many people. Okay.
So if you have a question, you can ask that question even if nobody else has that question. There is no need to say that there are many of us who have this question. So out of n objects, you have to select r objects here. And what you do here is, let's say you have these n objects. These n objects. I cannot draw n objects here, but let's say this is n. So out of this, these n objects, on the left hand side, I am choosing this r objects. Let's say that n is 12, and r is 6. So I can only show you the diagram for some specific value of n and r. Okay. So n is 12 and r is 6 here. So what we are saying here is, out of these n objects, you are selecting these 6 r objects. So कौन सी 6 हो सकती हैं? वो ये वाली 6 हो सकती हैं. See, all of these are unique objects. All of these are unique objects. Combinations के लिए हमारे पास ये जरूरी था. So now, out of these 12 objects, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है? So let's mark one object as a special one. उसको special बना देते हैं और उसको हम green कर देते हैं. So मैं ये green कर देता हूँ. ये special object है. ठीक है? Similarly, I make a copy of this, copy and then paste. Okay. So this is the same thing here. Now what I need to do is, on the left hand side and on the right hand side, so यहाँ से मुझे वो वाली combinations लेनी है जिसमें ये green वाली object लाजमी included होगी. So I can take this green one and then 5 any other. So it could be this 5. Okay. Now in this case, on the right hand side, I should exclude the special one and pick r objects, 6 objects out of these 12 objects. So I don't know if it makes it clear or not, but I think it is better to understand that you have n objects. Out of those n objects, you are selecting r objects. Out of these n objects, you are selecting, hang on a second. Out of these n objects, you are selecting r objects. How many different ways of doing that? So that tells you कि 12 में से आपने 6 चीजें पिक करनी है. ठीक है? यहाँ पे आप कहते हैं कि जो एक स्पेशल वाली है, ग्रीन वाली, उसको तो मैंने पिक कर लिया. बाकी 11 में से मैं 5 पिक कर लेता हूँ और वो स्पेशल वाली ऐड कर देता हूँ. Now what you can also do is कि you can exclude that special one. तो exclude करते हैं उसको, तो बाकी आपके पास जो 11 रह गई, उस 11 में से 6 की 6 पिक कर लेता हूँ. So what we are saying here is कि 12 choose 6 would be equal to 11 में से 5 पिक की और एक स्पेशल पिक कर ली, प्लस 12 में से 11 में से 6 की 6 11 में से पिक कर दी और स्पेशल वाली को छोड़ दिया. So leave the special one out और यहाँ पे include the special one in all choices. वो जितनी भी choices हैं, और यहाँ पे तो obviously आपने 12 में से 6 करनी है. This will include and exclude both. Okay. 12 में से जो 6 पिक करनी है, हो सकता है किसी में वो आए, हो सकता है किसी में ना आए. Some combinations will include the special one and some may exclude it. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. ठीक है? लेकिन राइट साइड पे हमने सेग्रीगेट कर दिया है. पहले हमने वो वाली लिखी है कि जहां पर हमने इंक्लूड किया है, और फिर हमने वो वाली लिखी है जिसमें हमने एक्सक्लूड किया, एक्सप्लिसिटली अलग-अलग कर दिया इन दो ग्रुप्स को. तो हमारे पास जो है ये 12 choose 6 should be equal to 11 choose 5 plus 11 choose 6. Okay, which is in the general form is n choose r is equal to n minus 1 choose r minus 1
plus n minus 1 choose r. Okay. Now, एक्सक्यूज मी सर, yes, सर अगर हमारे पास एक स्पेशल आइटम ना हो, जैसे अगर यहाँ पे एक ग्रीन डॉट के बजाय हमारे पास 2 या 3 ग्रीन डॉट्स हों, तो तब आप n-1 को n-2 या n-3 कर देंगे, लाइक स्पेशल ऑब्जेक्ट के साथ साथ वेरी करना, या फिर सिर्फ एक स्पेशल केस भी अप्लाई होता है? गुड क्वेश्चन. सो ये स्पेशल केस इसलिए अप्लाई हमने किया है क्योंकि हमने ये वाला स्पेसिफिक फॉर्मूला ही प्रूव करना है. ठीक है, दिस आइडेंटिटी वी हैव टू प्रूव. ठीक है, अगर हम 2 एक्सक्लूड कर देंगे तो वो कोई और आइडेंटिटी बनेगी जिसके लिए हम लिख सकते हैं इस तरह की कोई कॉम्बिनेशंस, बट वी डोंट नो व्हाट आइडेंटिटी वी वांट टू प्रूव. ये वाली आइडेंटिटी जो है वो स्पेसिफिकली इसी सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है जहां पे आपने कुछ ऐसी हैं जिनमें आपने इंक्लूड कर दिया है स्पेशल आइटम को, और कुछ ऐसी हैं जिसमें आपने स्पेशल आइटम को एक्सक्लूड कर दिया है. गॉट इट? यस सर, थैंक यू. So this only applies to this particular identity. किसी और आइडेंटिटी के लिए किसी और तरीके से प्रूव करेंगे, देखेंगे उसको. ठीक है. So now what is the binomial theorem? Binomial theorem says that if you have x plus y power n, ये सबने देखा होगा, a plus b whole square. Okay. So if you have a plus b whole square, what is it equal to? Can somebody say that? Mic use करके बता दें. a square plus 2ab plus b squared. 2ab plus b square. Great. ठीक है. a plus b cube, वो भी शायद कई लोगों को याद होगा. a plus b power 4, maybe a few students might remember that. a plus b power 5, it would be challenging, maybe not everyone will remember that. Okay. And a plus b power 9, वो शायद किसी को भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा. Okay. But I want to find a generic answer to x plus y power n. So x plus y power n, ये शायद हमने कहीं छोटी क्लास में देखा हो, अगर नहीं भी देखा तो अभी देख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू, ये देखिए अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें ये काफी सारी टर्म्स आ रही हैं. कितनी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे? आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं. ठीक है. a प्लस बी की क्यूब होगी, उसमें 4 टर्म्स आएंगी. a प्लस बी की पावर 4 होगी तो उसमें 5 टर्म्स आएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये आपके पास x प्लस वाई पावर n जेनेरिक जब आपके पास आएगी, सो इसके अंदर आपके पास n प्लस 1 टर्म्स आएंगी. n प्लस 1 टर्म्स आएंगी. तो स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आएंगी, क्यूब है तो 4 टर्म्स आएंगी, n है तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगी. एंड दोस टर्म्स कैन बी रिटन एज k going from 0 to n. This is summation k going from 0 to n. So इस समेशन का मतलब ये है कि आपने के आगे जो भी एक्सप्रेशन आने वाली है उसमें k को 0 से लेके n तक आपने वेरी करना है और सारी टर्म्स को ऐड कर देना. ठीक है. सो दिस वुड बी n choose k x पावर k y पावर n माइनस k. सो ये देखें, इससे हम बड़े आसानी से x प्लस y का होल स्क्वायर इसको खोलते हैं. दिस be equal to, according to the binomial theorem, this is our binomial theorem, generic binomial theorem, this would be equal to, so n is 2 here, this would be equal to k is equal to 0 to 2, 2 choose k x power k y power 2 minus k. So हमने क्या किया, n को सिर्फ 2 पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूला के अंदर. So ये हमारा binomial theorem. This is our binomial theorem. इसमें हमने n को 2 पुट कर दिया. So this will turn out to be 2 choose k 0, पहले 0 वाली टर्म आएगी, so x power 0 and y power 2 minus 0 plus 2 choose 1 x power 1 y power 2 minus 1 which is 1 plus 2 choose 2 x power 2 y power 2 minus 2 which is 0. So this will turn out to be 2 choose 0. 2 choose 0 is 1. 2 choose 0 is 1. So this would be equal to y squared. X power 0 is also 1. Plus 2 choose 1 is 2 x y plus 2 choose 2. दो में से दो ही आपने पिक करने हैं, is 1. This would be equal to 1 multiplied by x squared. So this is great. This is the same expression ये हमने जो a plus b whole squared की लिखी थी. ठीक है. इसी तरह से 3 के लिए भी लिख सकते हैं, फिर 4 के लिए भी लिख सकते हैं, 5 के, 6 के, 7 के, सब के लिए लिख सकते हैं. We need to show
कि this expression that we have written, ये वाली जो expression है, ये binomial theorem की जो expression है, we need to show that this expression is correct. ठीक है, एक तो हम मैनुअल वेरिफिकेशन करते जा सकते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? 1 2 3 4 5 10 तक कर लेंगे. So there are multiple ways of proving it. One is the combinatoric way, and the other is other way of proving is proof by induction. Proof by induction. So you might have seen induction in high school or maybe in the calculus 1 class. Okay, so you can prove it by induction. If you want to prove it by induction, first you need to prove for n is equal to 0 or n is equal to 1. 0 के लिए भी कर सकते हैं, n is equal to 1 के लिए प्रूव करते हैं. So proof for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. So for n is equal to 1, so try putting n is equal to 1 in this expression up here. इस expression के अंदर n is equal to 1 put करते हैं. So this would be equal to x plus y power 1, n is 1, is equal to k is equal to 0 to 1, k is equal to 0 to 1, 1 choose k, x power k, y power 1 minus k. Okay? So k is equal to 0 to 1, the power 1 है तो 2 terms होनी चाहिए. Obviously power 2 थी तो 3 terms थी, power 4 थी तो 5 terms थी, power n थी तो n plus 1 terms थी. Power 1 है तो 1 plus 1 which is 2 terms. So k is equal to 0 वाली एक term होगी which is 1 choose 0, x power 0, y power 1 minus 0, plus 1 choose 1, k is 1, x is 1, y power 1 minus 1 is 0. So 1 choose 0 is 1, 1 choose 1 is also 1. Okay? So this would be equal to y plus x. So this is the same on the left hand side. ये left hand side है, ये right hand side, ये बराबर आ गई, ये true है. So we have proved the theorem for n is equal to 1. We have proved the theorem for n is equal to 1. Okay. So assume that ये standard induction का तरीका है. Assume that it is true for n minus 1. Assume that it is true for n minus 1. ठीक है, assume करेंगे कि ये true है n minus 1 के लिए, और फिर हम using that we will show that this is true for n. Using only this assumption, I will show that this is true for n. जब ये n के लिए true हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर n minus 1 के लिए true था तो हमने show कर दिया कि n के लिए true है. ठीक है, which means कि अगर 5 के लिए true हो तो 6 के लिए मैं prove कर दूंगा कि true है. अगर 4 के लिए true हो तो मैं prove कर दूंगा कि 5 के लिए true है. अगर 7 के लिए true हो तो मैं prove कर दूंगा कि 8 के लिए true है. ठीक है, we now prove that the formula, it is true for n. Okay? So इससे फॉर्मूला कैसे प्रूव हो जाएगा? दिस इज स्टैंडर्ड इंडक्शन प्रिंसिपल. मैं ये कह रहा हूं कि n-1 के लिए हमने अज्यूम किया एंड यूजिंग दैट अजम्पशन मैंने प्रूव कर दिया कि ये n के लिए ट्रू है, व्हिच मींस कि अगर मैंने कहा कि 99 के लिए ट्रू है, इफ इट इज ट्रू फॉर 99 देन इट विल बी ट्रू फॉर 100. इफ इट इज ट्रू फॉर 100 देन इट इज ट्रू फॉर 101. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि if it is true for 2 then it is also true for 3. I will show that it is true for 3. So if it is true for 1 then I will show that it is true for 2. लेकिन 1 के लिए तो हमने यहाँ पहले ही शो कर दिया है. अगर मैं ये सिर्फ शो कर दूं कि यूजिंग दिस ओनली, ये जो रेड में लिखा हुआ है कि अगर n-1 के लिए ट्रू है तो n के लिए मैं प्रूव कर दूं, तो मैं n को जो है वो 2 से स्टार्ट कर दूंगा. n को 2 से स्टार्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि 1 से के लिए प्रूव कर दिया हमने पहले से कि ट्रू है, लेकिन नाउ आई विल शो कि इट इज ट्रू फॉर 2. फिर 2 के लिए ट्रू हो गया तो फिर 3 के लिए ऑटोमेटिकली, 3 के लिए हो गया तो 4 के लिए ऑटोमेटिकली, एंड दिस विल गो ऑन फॉरएवर. दिस इज बेसिक इंडक्शन प्रिंसिपल. ओके, इफ यू हैव फॉरगॉटन दैट देन प्लीज गो अहेड एंड रिवाइज दैट एज वेल, या ऑफिस आवर्स में पूछने, बाद में पूछने. बाकी क्लास 10 के अंदर जो है वो हम शायद इंडक्शन के बारे में इतना ही बताएंगे. ठीक है,
You can of course ask on Piazza as well, the office hours. So now we prove that it is true for n. So this formula here, ये हमने 1 के लिए प्रूव किया था, ठीक है. सो एज्यूम करते हैं n-1 के लिए ट्रू है. एज्यूम किया कि n-1 के लिए ट्रू है. सो दैट मीन्स कि हमने एज्यूम किया कि x plus y पावर n-1 is equal to summation k is equal to 0 to n-1. n-1 choose k, x power k, y power n-1 minus k. जहां जहां n लिखा था वहां पे मैंने n-1 लिख दिया. सो एंड दीज आर द ओनली टू प्लेसेस हियर. एक तो ये वाली है और एक ये वाली है एंड एक ये वाली भी. ये 3 जगह हैं एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज वेल. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ n, ये जो ऊपर वाले हमारे फॉर्मूला में यहाँ पे n लिखा था, ये n लिखा था, ये n लिखा था और ये n लिखा था और ये n लिखा था, इनकी जगह पे मैंने these 4 places मैंने n-1 लिखा. So ये हमने assume किया. Using this assumption, I am going to prove, using this assumption, we will prove that it is true, the formula is true for n. The formula is true for n. ठीक है. So वो कैसे प्रूव करेंगे? एक काम करते हैं. How do I make the left hand side equal to x plus y power n? कैसे बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को और फिर देखते हैं राइट हैंड साइड क्या बनती है. So somebody needs to tell me what should I do to the left hand side, here to make it x plus y power n. So somebody is saying, yeah, somebody is saying कि multiply with x plus y. That's exactly true. So लेफ्ट हैंड साइड पे x plus y से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So x plus y power n. So what I'm going to say here is multiply. But when you multiply, you can't be unfair to multiply only on the left hand side. You have to multiply on the right hand side as well. Multiply with x plus y on both sides. So x plus y power n on the left hand side. And on the right hand side, I'm going to get x plus y multiplied by this whole guy here. Okay. And I will pick this whole guy here. I will copy and I will paste. Right? So what is happening here is, oops. What is happening here is this x plus y guy is being multiplied with this guy. So पहले x को इससे multiply कर देते हैं, फिर y को multiply कर देते हैं. That means we will get two summations. Don't forget, on the left hand side, you are already getting the formula. You are already getting that formula जो हमारा binomial theorem का formula था for n. On the right hand side, I need to show that this right hand side is equal to this guy here. I need to prove that the right hand side will be equal to this guy here. ठीक है. कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं. x plus y को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या वो आंसर आ जाता है या नहीं आ जाता? Let's try that. So पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर y को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this will be two summations. One is k is equal to 0 to n minus 1 and this would be n minus 1 choose k. पहले x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x पावर k plus 1 and y पावर n minus 1 minus k. Okay. Plus summation k is equal to 0 to n minus 1. Okay. n minus 1 choose k, x power k. और फिर y ने मल्टीप्लाई किया तो दिस वुड बी y n minus 1 minus k plus 1. So this would be n minus k. Okay. n minus 1 minus k plus 1 क्या होगा? 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे. So this would be y power n minus k. Now these are two separate terms. And I'm going to treat them separately as well.
आई एम गोइंग टू ट्रीट देम सेपरेटली एज वेल, और किसी एक जगह पे जाके ये इकट्ठी हो जाएंगी, किसी एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाएंगी. सो लेट्स डू द फॉलोइंग, लेट्स डू द फॉलोइंग. सेट k इज इक्वल टू i माइनस वन. i कोई और वेरिएबल है, i कोई और वेरिएबल है, k भी यहाँ पे एक डमी वेरिएबल है जो मैं समेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसको k की जगह पे मैं i माइनस वन लिख देता हूँ. ठीक है. सो व्हाट आई विल गेट हियर is k is equal to, so I is k minus 1, k plus 1, so this would be equal to, which implies that I is equal to k plus 1. ठीक है. so जहां जहां पे k आ रहा था उसकी जगह पे आप i minus 1 लिखेंगे, यानी i जो है वो उसकी जगह पे आप k plus 1 लिखेंगे. so when k is 0 then I is 1, so that means कि I is going from 1 to n. I is going from 1 to n. I is 1 more than k. I is 1 more than k. If k is going from 0 to n minus 1, then I must be going from 1 to n, because I is 1 more than k. ठीक है. So यहाँ पे k की जगह पे I minus 1 डालेंगे. This would be n minus 1, I minus 1, and x power I, y power n minus k plus 1 करके उसको I, n minus I. So ये वाली पहली टर्म आपकी ये ट्रांसलेट होके इधर आ गई, पहली वाली टर्म ट्रांसलेट होके इधर आ गई. ठीक है. दूसरी वाली टर्म के साथ भी कुछ करते हैं. दूसरी वाली टर्म हम दूसरे कलर में करेंगे, दूसरी वाली टर्म हम दूसरे कलर में करेंगे. एंड लेट मी जस्ट पिक दिस कलर. और दूसरी वाली टर्म के अंदर यहाँ पे पुट k is equal to I. k की जगह पे I पुट कर देते हैं, which means कि it's just a change of variable, nothing much. So plus summation I is equal to 0 to n minus 1 n minus 1 choose k, sorry k की जगह पे I आ जाएगा, k की जगह पे I आ जाएगा, and x power I, y power n minus I, y power n minus I. Now what I'm going to do is, I am going to, this is a summation in which I is going from 1 to n. I is going from 1 to n. So I am going to separate out the first term, जिसमें I is equal to 1 से लेके n minus 1 तक हम टर्म्स अलग रखेंगे और बाकी एक हम अलग कर देंगे. So वो कैसे करने? Once again, let me just use the same color here. So this would be equal to I is equal to 1 to n minus 1, और वो जो n वाली जो टर्म है वो हम अलग से कर देते हैं, n minus 1, I minus 1, x power I, y power n minus I, बिल्कुल उसी तरह से. प्लस जो ये आखिरी मैंने n वाली जो टर्म थी यहाँ से अलग कर ली है, वो टर्म मैं अलग कर लेता हूँ, जहाँ पे I is equal to n था, n minus 1 choose n minus 1, x power n, y power n minus n. So मैंने क्या किया यहाँ पे कि I have taken this guy here, और उसकी जो समेशन में से आखिरी वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी है, और बाकी 1 से लेके n minus 1 वाली जो टर्म्स थी वो ये ऊपर छोड़ दी है, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से. ठीक है. So this guy in blue box here is n minus 1 choose n minus 1 is 1, and x power n, we know it's x power n, and y power n minus n is y power 0, which is also equal to 1. So this is really nothing but x power n, nothing but x power n. ठीक है. राइट साइड पे भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं. तो राइट साइड के ऊपर this second term here, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें हम पहली वाली टर्म छोड़ देते हैं.
इसमें पहली वाली टर्म छोड़ देती है. सो इसमें वी टेक I इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक, और 0 वाली जो टर्म है उसको मैं अलग कर लूंगा. n-1 चूज I, x पावर I, y पावर n-I. उसी तरह plus the first term where I is equal to 0 is n-1 choose 0, x power 0, y power n-0. Okay. And now this term here, ये जो मैंने separate out कर ली है ये ब्लू के अंदर, ये I is equal to 0 वाली टर्म थी. मुझे पता है I is equal to 0 से n-1 तक जा रहा था, तो 1 से n-1 तक तो मैं इसको ले गया हूँ, और बाकी 0 वाली टर्म मैंने अलग कर दी है. So 0 वाली जो टर्म अलग की है, this is n-1 choose 0 is 1, x power 0 is 1, y power n-0 is y power n. So this is nothing different from y power n. So ये वाली जो बॉक्स के अंदर टर्म थी ब्लू बॉक्स में, this is simply y power n. This is simply y power n. तो अब हमारे पास क्या चीजें हो गई, ये एक x पावर n हो गया, एक y पावर n हो गया, और बाकी ये जो दो हमारे पास टर्म्स बची थी, एक ये वाली और एक ये वाली. सो इन चारों को हम अलग से लिख देते हैं. और नाउ यू माइट नोटिस कि हमने ये किया क्यों है, ये गेम इसलिए की है कि लिमिट्स जो हैं ये भी i इज इक्वल टू 1 से n-1 तक बन गई हैं, और ये राइट साइड के ऊपर ये वाली जो है ये भी i 1 से लेके n-1 तक बन गई है. ये चालाकी इसलिए की है. ओके, सो नाउ so Miqdad, I think you should focus on the proof rather than asking the question, will we be tested on the proof? It doesn't matter. Okay. So tests are not important. Okay. अगर learning नहीं हो रही है तो फिर जितने मर्जी टेस्ट कर लें फिर फायदा कोई नहीं. So we have x power n plus y power n plus summation I going from 1 to n-1, and then I have n-1 I-1 xi by n-I plus, ये सब समेशन के अंदर है, n-1 choose I y power n-I. Now, what this turns out to be x power n plus y power n plus summation I is equal to 1 to n-1. So Shayan has asked the question, won't both i's be different as one I is k plus 1 while the other I is k? See, I is a dummy variable. We are only using it. This is a good question, and it is understandable if you get confused with that. But please understand that I is only a dummy variable. When I write, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, when I write I is equal to 1 से लेके 6 तक I square, ठीक है. इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 6 स्क्वायर. देखिए राइट साइड पे कहीं पे भी आई नहीं आ रहा. सो आई इज रियली अ डमी वेरिएबल हियर. it's a variable that you are using to indicate the various terms in the summation. ठीक है. So it really doesn't matter वो i k-1 और वो वाला i और ये वाला i, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता बिल्कुल. ठीक है. So now what you have here is कि ये भी x पावर i y n minus i है, ये भी x पावर i y n minus i है. So this would be equal to n minus 1 choose I minus 1 plus n minus 1 choose I and x power I y power n minus I. But what is this guy? What is this guy? What is this guy? Anyone? And choose I. ये n choose I, ये तो हमने पहले प्रूफ किया. So this is equal to x power n plus y power n plus I is equal to 1 to n minus 1 and choose I x I y n minus I. Okay. Now, if I write x power n as, if I write x power n as
and choose n x power n y power n minus n, then this is all right because y power n minus n is 1 and n choose n is also 1. ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, similarly y power n can also be written as n choose 0 x power n minus n and y power n. Why? Because n choose 0 is also 1, x power n minus n is also 1. So y power n. इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. Now what I'm going to do here is कि ये दोनों जो आइडेंटिटीज हमने लिख दी हैं यहाँ पे, इस वाली को और इस वाली को यहाँ पे मैं फैक्टरिंग कर देता हूँ. यहाँ पे मैं फैक्टरिंग कर देता हूँ इन दोनों को. One of them is for I is equal to 0 and the other one is for I is equal to n. I is equal to n. Okay, इसको 0 ही डायरेक्ट कर देते हैं, x power 0. Yeah. So n choose 0, x power 0, y power n minus 0 is the same as this guy here for I is equal to 0. So that means कि I can write this as, ये दोनों की दोनों टर्म्स अंदर समेशन में चली जाएंगी. Going from ये I is equal to 1 से n minus 1, ये आपके पास कितनी टर्म्स हैं? n minus 1 टर्म्स हैं. इसमें दो और ऐड कर दें तो वो n plus 1 टर्म्स हो जाएगी. So I will be going from 0 to n and choose I x power I y power n minus I. 2 for n. So हमने स्टार्ट किया था with the assumption that this is true for n minus 1, true for n minus 1. यहाँ इस assumption से स्टार्ट किया था, इसको मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि राइट साइड के ऊपर जो है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास वही आइडेंटिटी आ गई जो n के लिए. So that means starting from n, I have shown that it is true for, starting from n minus 1, I have shown that it is true for n. Starting from 3, I can show that it is true for 4. Starting from 4, I can show that it is true for 5. Starting from 1, I can show that this is true for 2. And we had already shown that this is true for 1. ये 1 के लिए तो हमने सबसे पहले show कर दिया था. So starting from 1, I can show that this is true for 2. If it is true for 2, then I can show that it is true for 3. If it is true for 3, then I can show that it is true for 4, and so on and so forth. This is basic induction principle. So that means this is true in general. This is true in general. Okay. Excuse me, sir. Yeah. जी सर, आपने अभी लास्ट स्टेप में बताया था कि आप दो टर्म्स ऐड कर रहे हो तो ये n+1 हो जाएगा. सर यहाँ पे आपने n क्यों लिखा है? मिस दैट पॉइंट. यहाँ पे मैंने n इसलिए लिखा है कि मैंने i को भी जो है वो 0 कर दिया है. यहाँ पे i is equal to ठीक है, 1 से n minus 1 था, तो ये 0 से n तक में ले जाएगा. ठीक है सर. Got it? So yes sir. One quick example. Sir, before you move on, मेरा भी एक सवाल है. जी please go ahead. सर, ये जो आपने सेट k is equals to I plus 1 किया है रेड में थोड़ा सा ऊपर, उसमें यहाँ पर ये इससे भी ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जी, जो सेट k is equals to I plus 1 है at the top of the top left पे, उसमें लिमिट्स 1 to n क्यों हो गई हैं and why are they not 1 to n minus 1? हाँ, यहाँ पे 1 to n इसलिए हो गई हैं क्योंकि हमने कहा है कि i जो है वो k plus 1 है, तो k जो है अगर 0 से n minus 1 तक जा रहा है तो i is 1 more than k. I is 1 more than k. So I should go from 1 to n. k 0 से n minus 1 तक जा रहा है तो I should go from 1 to n, right? वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट ऊपर वाली लिमिट भी चेंज होगी टू मेंटेन द नंबर ऑफ समेशंस. वो इसलिए चेंज हुई है कि आप मुझे खुद बताएं कि ये ऊपर वाली ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली समेशन के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं बताएं जरा. इस समेशन में कितनी n टर्म्स हैं? टोटल n टर्म्स हैं, तो मैं नीचे भी मैंने n टर्म्स ही रखनी है ना. ठीक है. i is equal to 1 से n तक जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली जब हम ये समेशन लिखते हैं ना तो ये होता है कि i going from 1 to n, which means कि
i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, कभी लिखते नहीं है इस तरह ऊपर i इज इक्वल टू n, लेकिन उसका मतलब भी यही होता है कि i इज इक्वल टू n तक है। वो सिर्फ नीचे वाले में शो कर देते हैं i इज इक्वल टू 1 और ऊपर खाली n लिख देते हैं, अपर लिमिट उसकी, लेकिन वो भी i की लिमिट ही होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक all right, so quick example here. So let's say you have a set, consider a set of size n, consider a set of size n, okay? Size n या cardinality भी उसको कहते हैं, cardinality n, which means that you have n elements in that set, n elements in that set, okay? So you have maybe 1 2 3 4 all the way up to n. This is one possible example, one simple possible example. You can also have a b c d e f blah blah blah. Total number of elements जो हैं आपके पास वो small n ही होंगे, total number of elements small n होंगे, ठीक है? Now I can take this set and I can make a subset out of it. I can make a subset out of it, ठीक है? इसमें से कोई subset, कोई example दें, you know, somebody give me an example of a subset from this set. One Type multiple of 6. type कर दें 3 to n minus 1, yeah, that's a subset. 3 say 3 4 dot 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 to n minus 1, this is one subset, okay? Multiples of 2, ये 2 4 6 dot dot dot, और ये पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा, you know, depending upon के n even है या odd है, ठीक है? And yeah, so you get the point. And by the way, who agrees that 2 comma 3 is also a subset? How many people will agree that 2 comma 3 is also a subset? Zoha agrees, nobody else? Yeah, बहुत सारे लोग agree कर रहे हैं, तो that means this is right. Who agrees that null set is also a subset? Okay, many people agree. Great. Who agrees that 1 2 3 4 dot 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 all the way up to n is also a subset? Yeah, improper, proper, you know, it doesn't matter, but it is a subset. All of these are examples of subset, ठीक है? All of these are examples of subset. हमसे पूछा जा रहा है कि how many total subsets? ये वही काउंटिंग का प्रॉब्लम आ गया. How many total subsets? कैसे काउंट करेंगे? Well, काउंट करते हैं इस तरीके से कि हर सबसेट जो होगा, या उसका साइज, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 या 5 या 6 या 7 या n होंगे, ठीक है? सो दैट मीन्स कि आपके पास n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स में से आप i एलिमेंट्स पिक करते हैं. n choose i, and I, this is the number of subsets. I will erase this for a second. n choose i is the number of subsets, of size i, but हमें i साइज के नहीं चाहिए, हमें तो 0 का भी चाहिए, 1 का भी चाहिए, 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, सभी चाहिए. तो हम i को समेशन कर लेते हैं 0 से n तक. Who agrees with this? Okay, this is our answer. Who agrees that this is our answer? So Ibrahim Mozam agrees that this is our answer. Many people have provided an answer 2 power n. Many people have provided that answer. I agree with that as well. Lekin this one is also correct answer. Why? Because I'm saying n choose I is the number of subsets with size I, and I can be anything from 0 to n. Okay? So now I'm going to show that this guy is equal to this guy. This guy is equal to this guy. Okay. So Zain is asking, how do you come up with 2 power n? Oh, well, I did not come up with that. Some of your fellow students, they came up with that. So I don't know how they came up with that, but I will come up with that with something. I will come up with that. Oops. So, see, I is equal to 0 to n and choose I. Recall करें कि summation I is equal to 0 to n and choose I
x power I, y power n minus I. What was this? What was this? Hasan Amin is saying that this is power set. Yes, power set, but हम show करते हैं अभी. What was this? This is x plus y power n. तो ऐसे करते हैं कि x को भी 1 कर देते हैं, y को भी 1 कर देते हैं. x को भी 1 कर दें, y को भी 1 कर दें. तो what you get is I is equal to 0 to n, and choose I, and 1 multiply. This is equal to 1 plus 1 power n, which is 2 power n. Simple. ठीक है? So this is. Could you repeat the last step? Which step? ये वाला? 1 plus 1 कैसे आया? 1 plus 1 ऐसे आया कि x और y दोनों को 1 पुट कर दिया मैंने. पर क्यों सर? मैंने इसलिए कि लेफ्ट पे भी पुट किया, y पे भी पुट किया है, और लेफ्ट पे भी कर रहा हूँ, राइट पे भी कर रहा हूँ. तो कोई लेकिन हम कोई और नंबर भी रख सकते हैं. अगर कोई और नंबर रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसके बराबर कैसे आएगी? ठीक है, ठीक है. वो तो हमने ऊपर वाला बनाना था, इसलिए हमने x और y को 1 1 पुट कर दिया. ठीक है ना? सो ये प्रूफ भी हो गया कि 2 power n. Great. And by the way, this is the number of subsets which include the null set. Repeat one. Sorry. Sir, can you repeat 1 plus 1 कैसे आया सर? ये x और y दोनों को 1 पुट कर दिया है. x और y दोनों को 1 पुट कर दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये ऊपर इसके साथ बराबर हो गई है, और राइट हैंड साइड जो है वो 2 power n आ गई है आपके पास. Thank you. ठीक है? So now I'm going to move on. I'm going to move on with what we call multinomial law. So this has nothing to do with the binomial theorem. This is equivalent to, this is an extension of combinations. This is extension of combinations. So you are given a set of n distinct objects and distinct objects. Okay. So recall करें. Pick R items. Yeah, objects. I'm using the word items and objects interchangeably, means the same thing. Pick R objects. How many ways? ये हम करते रहेंगे. How many ways? Answers in the chat window. And choose R, of course. And choose R. So this is and choose R. ये तो combinations हैं. ठीक है? Now think about it. कि ये मेरे पास जो ये n objects हैं, 1 2 3 ... n objects हैं, 1 2 3 all the way up to. मैंने क्या किया? मैंने उसमें से R को अलग कर लिया, और बाकी कितनी छोड़ दी है मैंने? n minus R छोड़ दी. ठीक है? So basically what I have done here is I have made 2 groups. One group उसका साइज है R, और दूसरे ग्रुप का साइज है n minus R. So basically this is 2 groups of sizes R and n minus R. ठीक है? So अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने n में से given n objects, pick n minus R objects, not R objects. Pick n minus R objects. How many ways? ठीक है? So obviously आप ये कहेंगे using combinations के n choose n minus R. लेकिन यार तस्वीर से तो हमें ये पता चल रहा है कि n में से n minus R पिक कर लें या R पिक कर लें तो एक ही बात है. या इन वाली लेफ्ट वाली पिक कर लें या राइट वाली. अगर लेफ्ट वाली आपने छोड़ दी है तो राइट वाली आपने पिक कर ली है. अगर राइट वाली पिक कर ली है तो लेफ्ट वाली छोड़ दी. तो एक को छोड़ना है, एक को पिक करना है. So really it's a division into 2 groups, one of size R, the other of size n minus R. So this should really be equal to n choose R. और ये हमें पता भी है कि ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि n choose R हमें पता है
कि दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया उसका फैक्टोरियल, एंड लेफ्ट साइड इज आल्सो n फैक्टोरियल n minus r factorial and n minus r which is really r factorial. So ये बिल्कुल एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है, आंसर भी एक ही आता है. This is same as NCR, same as n choose r. Okay, so there shouldn't be any confusion with that. ठीक है, so this is our revision of combinations. Multinomial law is an extension of that. वो कहता है ये दो ग्रुप में ना आप डिवाइड करें, दो से ज्यादा में भी आप कर सकते हैं, ठीक है. So a set of n distinct objects divide into r groups. Divide into r groups. अब दो ग्रुप्स में नहीं डिवाइड करना. Divide into r groups of sizes n1, n2, n3. कितना साइज है उनका? nr तक, इतने साइज हैं. such that obviously पहले वाले ग्रुप का साइज n1 है, यानी उसमें n1 ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे ग्रुप में n2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीसरे ग्रुप में n3 ऑब्जेक्ट्स हैं, rth ग्रुप में nr ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस शुड बी इक्वल टू n. दिस शुड बी इक्वल टू n. हम जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हमने डिवाइड करना है ना ग्रुप्स में, ठीक है. सो दैट मींस समेशन n i is equal to 1 to r. This would be equal to n. Should be equal to n. Okay? ये तो ऐसी साइड की बात हमने कर दी थी, ये तो हमने साइड की बात कर दी थी. ये तो एक्सप्लिसिटली कहने की जरूरत ही नहीं है, तो इम्प्लिसिट है कि अगर आपने n1 ऑब्जेक्ट्स एक में डाली हैं, n2 दूसरे में, n3 तीसरे में, तो उन सब का सम करें अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, तो वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बराबर ही होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज हियर, तो अभी तक तो क्वेश्चन आया ही नहीं. हाउ मेनी डिविजन्स पॉसिबल? कॉम्बिनेशंस ने दो के लिए जवाब दे दिया है. हाउ मेनी डिविजन्स possible? How many divisions possible? Okay. Now, so ऐसा करते हैं कि पूरी n ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उन n ऑब्जेक्ट्स में से पहले n1 पिक करते हैं, ठीक है. So first pick n1 objects. So n choose n1 ways to pick first group. To pick the first group. ये पहला ग्रुप जो आपने पिक किया, तो आपके पास n चूज n1 आ गई. अब कितनी ऑब्जेक्ट्स रह गई हैं? बाकी रह गई हैं n माइनस n1. ये इतनी रह गई हैं, उनमें से दूसरा ग्रुप पिक कर लेते हैं, वो n2 आ जाएगा. n2 ways to pick the second group. Okay, and then n minus n1 minus n2 choose n3 ways of picking the third group, and so on and so forth. You get the idea. Okay? So यहां पे ये पहला ग्रुप चूज करने के लिए इतने नंबर ऑफ वेज हैं, दूसरा ग्रुप चूज करने के लिए इतने हैं, तीसरा ग्रुप चूज करने के लिए इतने नंबर ऑफ वेज हैं. बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि the number of ways of picking all of these groups should be the product of these guys. इन सब का प्रोडक्ट होना चाहिए. So this would be, our answer would be the total number of ways of picking, of dividing into r groups of sizes n1, n2, n3 and r तक. ये करने के लिए आपको our answer is going to be n choose n1, फिर जो रह गई हैं n minus n1 choose n2, फिर n minus n1 minus n2, उसमें से n3 को चूज करें, एंड सो ऑन. कहां तक जाएगा कि आपने सब की सब जो है वो बीच में से निकाल दी है. n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 माइनस n4 माइनस n r माइनस 1 आखिरी तक पहुंच गए, और उसमें से आपने nr पिक कर देंगे, ठीक है. एंड दिस बाय द वे turns out to be, मैं आपको एक सिर्फ हिंट दूंगा और यू विल फॉलो द पैटर्न, ठीक है. ये पहले वाली टर्म को हम खोल के रखते हैं यहाँ पे कि ये है, oops, did not change the color.
ये है n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पहले वाली टर्म, एवरीवन एग्रीज विद दैट। Why are we multiplying जहां से? Because of the basic counting principle. Basic counting principle. Okay. Then the next one is n minus n1 factorial, n2 factorial, n minus n1 minus n2 factorial. ठीक है, into so on. ये सारे की सारी चलती जाएंगी. Now what I am going to point out here is कि ये जो n माइनस एन वन फैक्टोरियल है वो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह ये वाला अपने से नेक्स्ट वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर उससे वाला उससे अगले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा. यू कैन राइट दिस पैटर्न. ठीक है, और आखिरी वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो what you will end up getting is equal to n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial divided by nr factorial. This is by the way, ये फार्मूला देख के हमारे ध्यान में आया, ओ ये तो परमुटेशंस थी जिसमें रेपिटेशंस होती हैं. ठीक है, well the formula is the same but the concept is totally different. You can justify कि वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसके साथ मैच करता है, कुछ इंट्यूटिवली उसको जस्टिफाई कर सकती हैं, बट एक डिफरेंट तरीके से हम इस पे पहुंचेंगे. यहाँ पे हमने क्या कहा है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स थी, उन n ऑब्जेक्ट्स में से आपने ग्रुप्स बनाए, r ग्रुप्स, n1 ऑब्जेक्ट्स के, फिर n2 ऑब्जेक्ट्स के, फिर n3, फिर n4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू nr ऑब्जेक्ट्स. ये आपने r ग्रुप्स बनाए. इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक दोज ग्रुप्स. बाय द वे, अगर आपने दो ग्रुप्स के लिए इसको करना है ना, तो यू कैन जस्टिफाई वो कॉम्बिनेशंस वाला फार्मूला इससे जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर सिर्फ दो ही ग्रुप्स हों आपके पास, अगर आपके पास सिर्फ दो ग्रुप्स हों, तो इफ देयर आर ओनली टू ग्रुप्स, if there are only two groups, then you will have n factorial over n1 factorial or n2 factorial. ठीक है, एंड रियली हमें पता है n1 प्लस n2 जो है वो n के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक n1 का मतलब है कुछ पहले ग्रुप में चले गए फिर बाकी दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे. सो इट्स रियली n2 इज n माइनस n1. ठीक है, सो दिस इज n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n1 फैक्टोरियल. ठीक है, वो रियली यही वाली चीज है कि ये आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से n1 आपने अलग कर ली है और n माइनस n1 विच इज इक्वल टू n2 ये आपने अलग कर लिया. हाउ मेनी वेज? ये कॉम्बिनेशंस आपको बता देती है, क्योंकि दो ही ग्रुप्स हैं इसके अंदर. अगर दो से ज्यादा ग्रुप होंगे तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोर देन टू ग्रुप्स. टू के लिए भी चलेगा, ऑफ कोर्स टू के लिए भी चलेगा, बट मोर देन टू ग्रुप्स के लिए ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ आई हैव a couple of examples. पहली example. So you have 10 police officers. Divide into three groups. Divide into three groups. Okay. 5 needed for patrolling, 3 for स्टेशन, उनको स्टेशन करना है, पुलिस स्टेशन में रखना है, एंड 2 फॉर रिजर्व, वो शायद घर पे बैठेंगे. 2 फॉर रिजर्व. ठीक है, तो 5 का एक ग्रुप है, 3 का एक ग्रुप है और 2 का एक ग्रुप है. ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी पॉसिबल है? नंबर ऑफ डिविजन्स, आंसर्स इन द चैट विंडो. नंबर ऑफ डिविजन्स पॉसिबल. सो 2520 मोहम्मद हारून ने कैलकुलेट भी कर दिया है, और इतनी जल्दी हम तो नहीं कर सकते भाई. सो
People are saying 10 factorial divided by 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, which is the right answer. And this perhaps turns out to be 2520. Thank you everyone who has answered, the four of you or 5 of you. Baki log, I hope ke, you agree with their answers. Now, slightly more interesting example. Somebody has a question? जी सर, ये समझ में नहीं आया, आप एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट एग्जांपल? इसमें क्या चीज नहीं समझ आई वो पूछें। सर ये नंबर ऑफ डिविजन्स किस तरह की हैं, लाइक ये फैक्टोरियल वाली चीज? नंबर ऑफ डिविजन्स ऐसे की हैं कि आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हों, उसमें से आपने ग्रुपिंग करनी है n1, n2, n3 अप टू nr, तो ये तो हमने ऊपर प्रूव कर दिया है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आपके पास होते हैं वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 अप टू nr फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने 3 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, r नहीं ग्रुप बनाने, यहाँ पे सिर्फ 3 ग्रुप बनाने हैं। सो 10 ऑफिसर हैं जिनमें से 3 ग्रुप जो बनाने हैं, जिसमें आपको 5 in one group, 3 in the other group and 2 in the third group। तो कितनी पॉसिबल डिविजन होनी चाहिए, ये तो हमने सिंपल अप्लाई किया ऊपर वाला फॉर्मूला यार। ठीक है सर। जी सर। आपने वो मिस तो नहीं कर दिया ऊपर वाली चीज? जी सर, मेरा इंटरनेट वो खराब हो गया था उस वक्त, अब ठीक आ गया, समझ आ गया। कोई बात नहीं, हम ये वीडियो सारी अपलोड करेंगे, वी अंडरस्टैंड, वीडियोस अपलोड करेंगे और YouTube से आप दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। थैंक यू। सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? ऑफ कोर्स। सर, ये जो हमने अभी मल्टीनोमियल वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, इसको हम किस तरह से उसके साथ रिकंसाइल करें? जो परम्यूटेशंस के लिए भी एग्जैक्टली सेम है, तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि क्यों ये सेम आ रहा है। सही है, दो चीजों के आंसर सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट चीजों के, ठीक है ना। तो इससे परेशान ना हो, अगर नहीं जस्टिफाई कर सकते कोई बात नहीं, ये दो अलग-अलग सिचुएशंस है, दो कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस, जस्ट सो हैपेंस कि उनका आंसर जो है वो सेम आ गया। मतलब उनमें कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो सकता कि कोई लिंक भी अंदर इम्प्लिसिटली कोई लिंक भी है? इंट्यूटिवली आप कुछ कर सकते हैं सोच के, लेकिन आई वुड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट, उसके बारे में सोच के परेशान मैं नहीं होऊंगा। ओके सर, थैंक यू। सो नाउ देयर इज एन एग्जांपल, 10 people, ठीक है, select two of them. How many ways? Answer in the chat window. How many ways? Answers in the chat window. How many ways? 10 choose 2. This would be 10 choose 2, which is equal to 10 factorial, 2 factorial, and 8 factorial. So please appreciate that this is the same answer. This is the same answer of saying कि 10 लोग हैं आपके पास, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, एक में 2 लोग हो जाएं और एक में 8 लोग हो जाएं। Everyone is okay with that? 10 people divide in 2 groups of size 2 and 8. How many ways? So this would be 10 factorial over 2 factorial 8 factorial, ठीक है, सेम थिंग एज दिस, सेम, लेकिन यहाँ पे मैंने मल्टीनोमियल लॉ का इस्तेमाल किया। बाय द वे, इसको लिखने के लिए एक शॉर्ट नोटेशन है, और वो नोटेशन भी मैं आपको बता देता हूँ ये ऊपर वाली एग्जांपल में। सो दिस नोटेशन इज 10 5 3 2, ऐसे लिख देते हैं इसको। सो विच मीन्स कि ये रियली दिस इज 10 2,8 है, 10 2,8 है, ठीक है, which by the way is the same as 10 choose 2, which is the same as 10 choose 8, ठीक है, and also 10 choose 8,2 वो भी यही होगा। 3 के केस में ऐसा कुछ हम नहीं लिख पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, डजंट दिस इम्प्लाई के ऊपर जो हमने 2520 वाला फिगर निकाला था 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, वो जो पूरा
एक्सप्रेशन है ये वाला. जी So जी does this mean कि फिर 10 choose 5 equals 10 choose 3 equals 10 choose 2 जैसे नो हमने नीचे उसको कर दिया नो है? नो, सिर्फ 2 के केस में ऐसा होगा, 3 के All केस right, में, 4 के केस में ऐसा नहीं हो सकता. all right. सही, thank you. 2 is a special case. 2 is a special case. So, so 10 choose 2. Once again, 10 people select 2 of them. How many different ways? 10 choose 2. And this number, by the way, turns out to be 45. Please, mic mute kar lein. Please, mic mute. Folks, जिसका mic on है वो please mute कर लें. Thank you. So 45 different ways. So this is the same as dividing in groups of 2 and 8. Now, अब मैं ये कहता हूं कि 10 people choose 2. ठीक है, choose 2 ये हमने ऊपर पहले निकाला है. This would be 10 choose 2 which is equal to 45 ways. Okay? Everyone is okay? Okay. Now, I need 1 for president. So remember, हमने ये कहा था कि आपके पास एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें से आपने x और y को पिक कर लिया. दिस इज द सेम एज पिकिंग y और x. इसकी हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे. ये डबल काउंटिंग हमने एलिमिनेट कर दी थी जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था ये डबल काउंटिंग नहीं की, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स एक ही ग्रुप है. जो उस ग्रुप में एक्स और वाई है, इस ग्रुप में भी एक्स और वाई है. सो इनकी डबल काउंटिंग नहीं होगी, इनको हम एक ही काउंट करेंगे. बट नाउ आई एम सेइंग आई नीड 1 फॉर प्रेसिडेंट एंड 1 फॉर वाइस प्रेसिडेंट. इसका मतलब है कि जो एक आपने पिक किया है उसको हमने प्रेसिडेंट बना देना है, दूसरे को वाइस प्रेसिडेंट बना देना है. तो अगर एक्स प्रेसिडेंट बन जाए और वाई वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, it's not the same as saying कि y president बन जाए और x vice president बन जाए, right? So there are 2 different ways or 2 factorial different ways that xy can be arranged as president and vice president, as president and vice president. Okay? So the number of ways of doing that is I need 1 for president and 1 for vice president. So this would be equal to 10 choose 2 into 2 factorial, which is equal to 45 into 2, which is 90. और 90 ये हुआ है, 90 इसलिए हुआ है कि अब मैंने x y और y x को जो है डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया. इन दोनों को मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया. Why? Because I need 1 for president and 1 for vice president. 1 for president and 1 for vice president. Okay? So ये हमारे पास 90 इसका आंसर है. ठीक है? Another way of looking at it is कि आपके पास 10 पीपल हैं, 10 पीपल. ठीक है, इसमें से आपने 3 ग्रुप्स बनाने हैं. वैसे तो 2 बनाने थे, 3 ग्रुप्स बनाने हैं. 8 का एक बनाना है, एक का एक ग्रुप बना देंगे और एक का एक ग्रुप बना देंगे. ठीक है, इसको प्रेसिडेंट बना देंगे, इसको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, और ये जो है अवाम है. ठीक. So how many ways of doing that? That would be 10 choose 8, 1, 1. 10 में से 8 एक तरफ, एक तरफ और एक तरफ. ठीक है. Now this is different. Because this is 10 factorial divided by 8 factorial, और 1 factorial तो 1 होता है, 1 factorial 1 होता है. So this turns out to be 90 automatically ये 90 आ जाएगा आपके पास. So इसको बड़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे हमने मल्टीनोमिनल जब किया, इसमें हमने एक और एक को अलग कर दिया. हमने ये नहीं कहा कि उन 2 का एक ग्रुप है. अब मैंने एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया. इसकी ग्रुपिंग हमने बिल्कुल इनको जो है अलग हिस्सों में डाल दिया. एक को प्रेसिडेंट बना देंगे, एक को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, विच मीन्स के नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन x to be president and y to be vice president and x to be vice president and y to be president. इन दोनों situations में मैं differentiate कर रहा हूँ. इसलिए मैंने 10 choose 8 choose 1 choose 1 किया. Okay? So now I am going to talk about something
a very yes, yes. सर ये जो आपने एग्जांपल 2 दिया है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाली, सर इसके अंदर आप बता सकते हैं आपने 2 फैक्टोरियल क्यों किया था? उसकी वजह से ओवर काउंटिंग नहीं आ जाएगी? आपने कहा था हम अवॉइड कर रहे हैं ओवर काउंटिंग। हम ओवर काउंटिंग अवॉइड इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने कहा था कि 10 लोगों में से 2 को चूज करना है। जो 2 आपने चूज करने हैं वो एक्स और वाई हो जाए या वाई और एक्स हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपने जो 2 चूज करने हैं उसमें से एक प्रेसिडेंट बनाना है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तो इससे आपको फर्क पड़ेगा कि एक्स प्रेसिडेंट हो या वाई प्रेसिडेंट हो, फर्क पड़ जाएगा ना। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं ना, इसलिए इसमें अब काउंटिंग डबल करनी अच्छा पड़ेगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर मैं ना कहूं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तो आई डोंट केयर कि एक डब्बे में मैंने एक्स और वाई को डाल दिया है उठा के। इट डजंट मैटर कि एक्स पहले है या वाई बाद में है और वाई पहले और एक्स बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वहां पर डबल काउंटिंग हमें नहीं करवानी है। लेकिन अगर मैंने एक्स को प्रेसिडेंट बना दिया और वाई को वाइस प्रेसिडेंट, या वाई को प्रेसिडेंट और एक्स को वाइस प्रेसिडेंट, ये 2 अलग-अलग सिचुएशंस हैं। इन दोनों को अलग इंडिपेंडेंटली काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स इन अर्न्स। ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यू हैव एन डिस्टिंक्ट, very important, distinct, very important and distinct balls and are distinct boxes या urns. Urns ऐसे डब्बा उसको कहते हैं, बॉक्स को कहते हैं। ठीक है। So how many ways, how many different outcomes of this experiment if you randomly put the balls in the urns? ठीक है। ये आपके पास ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, आर अर्न्स आपके पास पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास ये n बॉल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन पिक दीज बॉल्स एंड रैंडमली पुट इन दीज अर्न्स? देखें, पहली वाली जो बॉल है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? पहली बॉल के लिए कितनी चॉइसेस हैं? पहली बॉल के लिए R चॉइसेस हैं, दूसरी के लिए भी R चॉइसेस हैं, तीसरी के लिए भी R चॉइसेस हैं। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि एक डब्बे में एक ही बॉक्स में एक ही बॉल आनी चाहिए। हमने ये भी नहीं कहा कि सारी बॉलें एक बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। ठीक है। पहली बॉल के लिए भी R चॉइसेस हैं, दूसरी बॉल के लिए भी R चॉइसेस हैं। सो नंबर ऑफ वेज इज पहली के लिए R चॉइसेस, दूसरी के लिए भी R चॉइसेस, तीसरी के लिए भी R चॉइसेस, सबके लिए R चॉइसेस. So this would be equal to R power n, not n power R, not n power R, Daniel. So this would be R power n. ठीक है. Possible outcomes if you put balls in urns randomly. अगर randomly आप put करेंगे तो आपके पास R power n पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स आ जाएंगे. ठीक है. ये लेकिन ये देख लें, ये बॉल्स आपके पास डिस्टिंक्ट थी. ठीक है. व्हाट इफ द बॉल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट? व्हाट इफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द बॉल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, व्हाट इफ द बॉल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट? ठीक है. सो अब मेरे पास जो है ना वो बॉल्स डिस्टिंक्ट नहीं है. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है. That xi is the number of balls, और ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, in urn I. xi is the number of x1 urn 1 में, x2 box 2 में, x3 box 3 में, and so on and so forth. Summation of all of these xi for I going from 1 to r, this should be equal to n. टोटल आपके पास n बॉल्स हैं और ये xi नंबर ऑफ बॉल्स हैं इन ईच अर्न. सो इनका सम जो है वो आपके पास n होना चाहिए. ठीक है. we need number of नॉन नेगेटिव, कहीं पे -1 बॉल नहीं हो सकती. we need number of non negative solutions to this equation. ये एक इक्वेशन है, उसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस चाहिए. एग्जांपल देते हैं आपको कि लेट्स से कि आपके पास 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं अलाइक, सारी एक जैसी हैं बिल्कुल. ठीक है. एंड 2 बॉक्सेस, 2 अर्न्स हैं. ठीक है. सो x1 plus x2 should be equal to 3.
तो x1 जो है इसके अंदर आ जाएंगी और x2 बॉल्स उसके अंदर आ जाएंगी, 2 बॉक्सेस, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि आपके कि इसमें 0 आ जाए और इसमें 3 आ जाए, ये भी 3 आ जाएगा। अगर इसमें 1 आ जाए और उसमें 2 आ जाए, ये भी 3 आ जाएगा। इसमें 2 आ जाए और इसमें 1 आ जाए, ये भी 3 आ जाएगा। अगर इसमें 3 आ जाए और इसमें 0 आ जाए, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये सारे 3 आएंगे। सो देयर आर 4 डिफरेंट पॉसिबल वेज, 4 डिफरेंट पॉसिबल वे। इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 के 4 सॉल्यूशंस हैं जिसमें x1 और x2 नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फाइंडिंग आउट द नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस इज अ बिट ट्रिकी, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा काम पहले करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा काम ये होगा कि हमें पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ इनमें कोई 0 नहीं है, इसमें कोई 0 नहीं है। फर्स्ट फाइंड द पॉजिटिव सॉल्यूशंस। हम थोड़ा सा टाइम से ओवर हो गए हैं, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर। ये हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वो मैं अभी आंसर कर सकता हूँ, और अदरवाइज आई विल स्टॉप और रिकॉर्डिंग हम बंद कर देंगे। एनी क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन? वी हैव अ क्विज ऑन मंडे, तो वो लोग जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, प्लीज मेक श्योर के होमवर्क कंप्लीट करें, और इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स प्लीज पोस्ट देम ऑन पियाजा। अनूर, प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन। सर, जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इज इट फाइन इफ वी यूज कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस के फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन फैक्टोरियल? हाँ, वो फॉर्मूला से ही होंगे। वो सब के सब क्वेश्चंस जो हैं उनमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला ही लग रहा होगा। श्योर। यस सर, थैंक यू। जी। Excuse me, sir. Yes. Will this lecture also be included in the quiz content? Everything. We have a lecture on Thursday that will also be included in the quiz. All right, thank you. Yeah. Excuse me, sir. जी। सर, am I audible? सर, मुझे ना अभी भी इंट्यूटिवली समझ नहीं आ रही सर कि जब हम लोग 10 चूज 2 करते हैं और जब हम लोग 10 चूज 8 करते हैं, सर वो इंट्यूटिवली सर 10 चूज 2 का मतलब है कि मैं 10 में से 2 आइटम्स चूज कर रहा हूँ और कोई से भी हो सकती हैं, और 10 चूज 8 में से मैं 10 में से 8 चूज कर रहा हूँ। सर वो इंट्यूटिवली इक्वल कैसे हो जाती हैं सर? लाइक इफ यू लाइक ऐसे इक्वल होती हैं कि यूं समझ लें कि मेरे पास एक रूम है, मैंने 10 में से 2 लोगों को एक रूम में डाल दिया और 8 लोगों को जो है वो मैंने ग्राउंड में खड़ा कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी वेज यू कैन पिक दीज 2 पीपल, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि हाउ मेनी वेज यू कैन पुट दोज 8 पीपल इन द ग्राउंड, राइट। क्योंकि बाकी जो 2 बचेंगे वो इधर ही आ जाएंगे। जितने वेज इन 2 के हो सकते हैं उतने ही वेज उन 8 के भी तो हो सकते हैं ना। जी सर, राइट। इन 2 को चूज करने के जितने वेज हैं उतने ही उन 8 को बाहर निकालने के वेज हैं। सही। So intuitively yeah, or formula wise भी it makes sense. Taha, please go ahead. So would it be possible for you to upload these notes on LMS? यार ये ऐसे रफ से नोट्स हैं, मैं कहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बट या these are very प्लीज कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा, मैं इनको कर दूंगा, बट you know lots of scratches and you know these kind of stuff, so don't take these seriously. ये सारे के सारे वैसे वीडियो में भी आ जाते हैं ऑब्वियसली। ठीक है सर, थैंक यू। जी अपलोड कर देंगे, नो वरीज। any other question? If not then I will stop the show. जी सर, जो हम होमवर्क लिख रहे हैं उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी दें या सिर्फ आंसर मैटर करता है? If you understand the question, then just provide the answer. Okay, it is not important for us to know that you understand. It is more important for you to understand the question and the answer. So okay, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सब के आंसर्स आपको ऑनलाइन भी कहीं भी मिल जाएंगे. I would
I would very strongly recommend not to look at those. आप खुद ट्राई करें, नहीं ट्राई करेंगे अगर तो आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बिल्ड होंगे, क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे उसको 4 तरीकों से सॉल्व करेंगे ना, तो आपके जहन में जो है वो वाली चीजें भी आएंगी जो शायद हमने होमवर्क के क्वेश्चंस में नहीं पूछी थी होंगी. You can only ask so many questions in the homework. When you are solving those, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो additional learning हो जाएगी उसके साथ में. So please make sure कि you understand very clearly each and every question, और फिर उसके बाद जो है वो ग्रुप में से एक मेंबर सबमिट करवा दे. That is perfectly all right. और लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर किसी से भी पूछ सकते हैं, नो इशू विद दैट, डिस्कस कर सकते हैं. बट डिस्कशन करें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. डिस्कशन इसलिए ना करें कि आपने होमवर्क खत्म, होमवर्क कर भी लें, क्या फर्क पड़ता है, इतना उससे कोई मैटर ही नहीं करेगा ना. तो उसकी परसेंटेज कोई इतनी ज्यादा है, इवन ग्रेड के लिए भी. वैसे तो ग्रेड मैटर नहीं करता है, इट्स द लर्निंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, और किसी का कुछ? जी सर, आई वांट द वेट लिस्ट. तो इज इट पॉसिबल कि आप बता सकें कि एलएमएस में क्या टैब अवेलेबल नहीं है हेल्पिंग मेरा, तो होमवर्क एंड क्विज़ेस. आई एम सॉरी अरीज, आपने क्या बोला? आपका वॉल्यूम सर, मैं बहुत वेट लिस्ट पे हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि होमवर्क कोई है गिवन, या क्योंकि कोई एलएमएस टैब नहीं है मेरा अवेलेबल. अवेलेबल नहीं, तो आप वेट लिस्ट में, तो आप अपने आप को तो एनरोल तो करवाएं पहले क्लास के अंदर पहले. I can't hear you. ये मेरे ख्याल है आपकी तरफ से नॉइज आ रही है, जरा माइक को म्यूट कर दें. मैं माइक म्यूट कर दीजिए जी. So basically, if you are not enrolled in the class, you need to make sure that you are enrolled in the class. Otherwise, you are missing all the important stuff. प्याजा के ऊपर हमारी तो डिस्कशंस वगैरह क्लास की हो रही हैं. मेक श्योर दैट यू प्याजा पे आप एनरोल कर सकते हैं विदाउट इवन एनरोलिंग इन द क्लास. सो मेक श्योर यू एनरोल इन दैट. उसके अलावा जो है वो मेक श्योर दैट यू सेंड एन ईमेल इमीडिएटली टू द मैथ्स डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है. मेरा ख्याल है मरियम आमिर है वहाँ पे, मरियम आमिर. उसको ईमेल भेजें, उससे कहें कि मुझे एनरोल कर दें. अदरवाइज तो ये सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी. और किसी फ्रेंड से मैंने ऑलरेडी मैम मरियम को ईमेल कर दी थी लास्ट वीक, बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड. मुझे कॉपी कर दें, वो ईमेल जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर दें, कॉपी कर दें. कोई रीजन होगी आपकी, मेरा ख्याल है कि क्यों आप वेट लिस्ट में अभी तक, कोई सेक्शन स्वैप या इस तरह की कोई चक्कर होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शी इज हैंडलिंग ऑल दैट स्टफ. बट आप मुझे भी कॉपी कर दें उसी ईमेल के ऊपर, जो है ना, उनसे पूछें दोबारा कि क्या बना है इसका, एंड सीसी मी ऑन दैट. सो होपफुली इट विल बी टेकन केयर ऑफ. और दूसरे ये कि किसी दोस्त से लेके आप होमवर्क वगैरह तो कंप्लीट करें एंड ज्वाइन प्याजा. एटलीस्ट प्याजा के ऊपर डिस्कशन सारी की सारी. ठीक है. सो एनीबॉडी एल्स, किसी और का क्वेश्चन हो कोई? यस सर. सर, यू सेड कि जो हमारा होमवर्क था, वी कैन डू इट विदाउट एनी लाइक नॉलेज फ्रॉम द क्लास दैट वी जस्ट हैड, बट उनमें कुछ लाइक हाउ मेनी डिविजन्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें ये मल्टीनोमियल थ्योरम जो आपने आज सिखाया, जी, you are right. When I was saying that, I realized there were a couple of questions about multinomial law के बारे में, but आज के लेक्चर से ज्यादा आपको नहीं कुछ चाहिए होगा. ठीक है, थैंक यू सर, वही कंफ्यूजन थी. जी श्योर. So Areej, if you send the email, मरियम आमिर को आप ईमेल करें और साथ मुझे सीसी करें. So we will send you the link for Piazza. Okay, no more questions? All right, I will stop the sharing here and then end the session. We'll upload the video as soon as it is available. Okay, Khuda Hafiz.